नमस्ते, welcome, welcome Jeena ji, welcome Anamika, welcome अनुराग जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे वेबिनार में आए and you're going to talk to people about various things about Kilmora, about the Himalayas, about weavers, and this is so awesome. You know, I've seen your work and I've experienced it and I've been through it and I've seen your office over the years and the kind of people who've been working, and it is commendable. It is really jaw-dropping work that you all have achieved, and I'm so happy. Friends, ladies and gentlemen, welcome, 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 ladies and gentlemen. Welcome to another magical round of Kilmora this time, and they're going to be talking about their weavers who have been producing fantastic stuff. I don't have much to say in terms of knowledge because I can only introduce people and they will unfold their magic to you. They will open up the treasure trove. Today we have Jeena ji with us, who is the backbone of Kilmora, you know, right from the start. And he's the one who has empowered local communities, people. You will get to know more about him and his work as you go along. And then we've got rocket thrusters like Anurag Chatrat and Anamika Das, who are so they all take their turns. So sometimes somebody becomes the horse and somebody becomes the Sarthi and somebody becomes Krishna, and they all take different roles, different turns. And over to you, my friends. Go ahead and do what you have to do. Thank you. Thank you, Mohit. Thank you for that introduction. It is indeed a pleasure to be here, to be with all of you. Thank you to all those who've joined us for this session. I just wanted to say that times are indeed challenging for all of us these days with the pandemic. We have all seen death and disease in our immediate circle of friends and families. So these are difficult times. However, one of the fundamental qualities of humans is that of hope. So here's hoping that things get better soon. On that optimistic note, we'll start our session. So we've structured it to be around 45 minutes. Of course, please keep your questions and comments coming in the chat. Just a note, connectivity. we are based out of rural part of Uttarakhand, so connectivity is sometimes an issue. So in case one of us drops or whatever, just please bear with us. So if we can put up the presentation, then I'll briefly run through the initial bit, and then I'll hand it over to Jeena ji. So the presentation is just coming up. Yeah. So welcome everybody. So the structure of the presentation, if we go to the next slide, the structure of the presentation is that I'll briefly talk about our organization initially, and then Jeena ji will take over from there. Jeena ji will talk about the process of weaving, how it is done. We'll show you photographs, we'll show you videos. Of course, ideally we would have wanted to be at the weaving center to show it to you from there, but unfortunately these days, because of the pandemic, our center is closed. We are under lockdown here in Uttarakhand, so our center is closed. Then after talking about the process of weaving, Jeena ji will talk about his journey. His journey is a really special one. He started off with just a resolve to make weaving his life mission, you know. And when he started, he did not know anyone who knew weaving, because the area where we are, that weaving is not a traditional craft here. So he just wanted to do weaving, and he connected with our organization, and then now he heads our weaving vertical. It provides livelihoods to over 1,000
over 30 full-time livelihood to over 30. That is really commendable, and it's a journey. But of course, you'll hear about it from Jeena ji in his own words. Parts of the webinar would be in Hindi, and we'll try and translate so that the information is accessible to all. So I'll start with a little bit about our organization. As you can see from our logo at the bottom right, it's slightly small, but we've added 25 years. So this is our 25th year. We were started in the year 1996 by our sister organization Chirag, which is a grassroots NGO in the area. And we were set up as what is known as a Section 8 company, which is a company in every other respect except that we are not, by law, is not permitted to give dividends to shareholders. So a Section 8 company like us straddles the world of a socially conscious NGO and a business. We are what is known as a social enterprise, and I like to use the term, we are not just about profit. But I'll talk more about that later. The name of our organization is Kumaon Gramin Udyog, as you can see from the top right-hand corner, or KGU. We sell under the brand name of Kilmoda, which incidentally is a small plant which is medicinal plant which is found in the area. Our mission is to provide sustainable livelihoods in the region of Kumaon, which is part of Uttarakhand. I'll briefly place us spatially where we are. We work with over 600 farmers and 350 artisans. Again, I'll talk in slightly more detail later. So if you can move on to the next slide, I'll just show you where we are spatially. So Uttarakhand is in the is to the north, slight northeast of Delhi, and Uttarakhand has two major parts, Kumaon and Garhwal. So Garhwal is the area to the west, and Kumaon is the area to the east. So that's where we operate out of. Primarily, we operate out of district Nainital and Almora, which you can see in the map. If we can move on to the next slide. Thank you. These are the views when it's not. Cloudy. And Anurag, I just wanted to interrupt just to share that Jeena ji के वहाँ भी light चली गई है, तो we shall we shall take it as it goes. Improvise. हाँ, तो जीना जी, हम जब तक लाइट चलती है तो हम चलाते हैं वेबिनार, और थोड़ा बहुत हम लोग भी फिर पिच इन कर लेंगे. So just to talk about the timing of the electricity going at Jeena ji's place. While we wake up to views like this, we face a lot of challenges. Of course, the first one is inaccessibility. We are the closest big town is about 70 kilometers, because we are in a hilly area that typically takes around 3 hours to get to, and we cannot get up in the morning and say, oh, I want a pizza today, or oh, I want to go to see a film. That's just not possible here. One has to plan for things like that. And of course, I'll just show you that I also don't have electricity where I am right now. So I'm also sitting amidst a lot of candles. Then water is an issue here. Connectivity is an issue here. So there are lots of challenges, but I think we take the rough with the smooth, and that's part of the deal here. So anyway, sorry for that digression. We'll get back to KGU. If you can move on to the next slide, please. Yeah. So in working to provide livelihoods, what we do is we produce handcraft. We market these.
So on the screen now, you can see our range of products. So basically, we have in the crafts, the first two are the crafts products, and the next four are the agri products. So in the craft segment, we have hand woven and hand knitted items. Hand woven is, of course, what we are talking about today. Then in hand knitted, we work with approximately 325 artisans, all of whom are women. So we plan to have another session later on, where we'll talk about hand knitting. And in fact, if any of you have any other ideas which you would want us to cover in later seminars or webinars, we can do that. Just put in your ideas in the comments section. So apart from the crafts in which we have hand weaving and hand knitting, we in agri products we have the four product lines which I have put on the screen. So we operate in a fruit belt. In fact, as we speak, this is the fruit season, and we are totally surrounded by trees which are currently fruiting. So it's a lovely lovely time of the year to be here. Peach with plum with apricot, and later on apple will also be fruiting. So it's really nice. So from we source these fruits from small and marginal farmers in the area, and from that using those jams and chutneys. And the next sort of agri product which we do is apricot. We do cold press oils. So for example, we have apricot growing here abundantly. So whatever apricot goes waste, we using the local community, we collect the seeds and then cold press those seeds to make oil and scrub. So that's the second agri product line. Then apart from that, we source culinary herbs from the farmers locally. We source herbs such as basil, thyme, oregano, parsley, etc. And we clean them and then package them for onward sale. And the last agri product line which we work on are local. Again, we them from the farmers like rajma, bhat, soya, etc., and then we market them. So that's in a brief nutshell our product range. If we move on to the next slide, I'll just briefly talk about where we sell our products. So we participate in a lot of retail exhibitions. We would have probably come to the city where you are based. So we participate in exhibitions such as the Dastkars, Nature Bazaar, Winter Mela, then Sanat Kada in Lucknow, then 100 Hands in Bangalore. Then we also come for exhibitions to Delhi Haat in Delhi. Of course, this year has been slightly different, but I'm talking about a normal year. Apart from that, we sell B2B to entities such as Fab India, Anoki. You would have seen a lot of our products in Fab India. Then we sell to Anoki, then Utsav in Delhi, Ambara in Bangalore. So we sell all over the we sell products all over the country through other outlets also. Then we have online portals. So we are present on a few portals like Jaypore, Jaypore, Jaypore.com, and itokri.com. So that helps us reach out to our customers also. Since the pandemic started, we've started our own online shop, and it can be found on www.kilmoda.in. That's our website. And lastly, which should have been the first, perhaps our biggest marketing channel are the Kilmoda shops. So these are branded as Kilmoda shops, and we have 4 of them in the Kumaon region. Thanks, Mohit has put the website in the chat box. So we have 4 of these shops in the Kumaon region. If we can go on to the next slide. So typically these are Kilmoda branded only, though we do keep
stuff from some other similar cater to the tourist footfalls in the area. Of course, has been an unusual year, to put it mildly, in terms of tourist influx in the areas. But hopefully that will change soon. So can we move on to the next slide, please? So in the beginning, I had mentioned that KGU is not just for profit. So our model is based on that of fair pricing for our farmer partners and our artisans. So artisans, for example, we pay them on a piece rate basis. So at the beginning of every year, we discuss with the artisans and we finalize piece rates for each item. And then depending on the production they do, they are paid this fair wage. Apart from that, then we share a percentage of that profit also with our artisans and employees, which we give to them as ex gratia. And apart from that, if we still have some funds left over from our profits, we fund a local primary school and a local and a small hospital in the area. I put in some photographs for both of them. So that's why I said we are not just for profit. Of course, this year, as in the year which has gone by, has been a difficult year for us, like it has been for every other organization. But we hope to continue sort of serving the community in these different ways. That was a brief about the organization. What we'll do now is we'll come to the weaving. If we can go on to the next slide. Yeah. So we have a small weaving center which is based in Budibana village, which is very close to the town of Mukteshwar. So Mukteshwar is, to put it very crudely, it's halfway between Nainital and Almora. So just to put it specially. So our weaving center is there. It's of course evolved over a period of time. We started in a small little shed in 2000, and then slowly we've expanded, and now we currently have 18 handlooms and videos now. We have 18 handlooms in the area in the weaving center, and we have since the last 2 or 3 years moved on to cotton and linen also. So we put up a small poll which we'll just put out, where we've asked a little fun question from all of you. Yeah. Okay. And in terms of products at our weaving center, we produce shawls, stoles, scarves, sarees. We do yardage, which is fabric, and then out of those fabrics we make garments. So can we move on to the next slide, please? Is Jeena ji on? I think Jeena ji has been disconnected because he's lost electricity place. Hello. Jeena ji is there. Great. Yeah. हाँ जीना जी आपकी आवाज आ रही है. Thank you. So someone mentioned that they love to visit us. So you are more than welcome to visit us whenever you are in the area. And we regularly get visitors to our weaving center, and often they are taken aback by the when they actually see the process of the intricacy, and weaving as such is a fundamental
and quite a few people are unfamiliar with the actual process of how it happens. So it really is a joy to see the threads and the yarns being converted into fabric or beautiful shawls. So what I'll do now is I'll hand it over to Jeena ji, who will take us through the process of weaving, and then he will talk about his journey with us. So Jeena ji, आप जी हेलो हाँ जी, can we move on to the next slide, please? Thank you. हेलो हेलो ये जीना जी, जो आपकी आवाज आ रही है, we can hear you. हाँ, हेलो इस स्लाइड से हम ये दिखा रहे हैं कि हम जैसे कोन से हम यार्न से कपड़ा किस प्रकार बनाते हैं। तो हम किसी यार्न से थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं तो उसमें वार्प और वेफ्ट दो चीजें होती हैं। वार्प और वेफ्ट के नेचुरल इंटरट्यून से उनके आपसी जो उनका बंधाव होता है वार्प और वेफ्ट, जैसे जो वर्टिकल थ्रेड होते हैं उनको वार्प बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड होते हैं उनको वेफ्ट बोलते हैं। तो इन दोनों के जो नेचुरल जो इंटरट्यून होता है उससे हमारा कपड़ा तैयार होता है। तो वीविंग का है कि धागे से कपड़ा कैसे बनता है करके। तो जीना जी मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल दूं? हाँ, जी जी। तो we will interrupt a little bit and share this in English. Most of it will be simple enough in Jeena ji's Hindi for most of us to really understand. But Jeena ji is basically explaining the process of weaving, where he's talking about how the thread gets woven. If you see the top left hand corner, you have the spools of thread, and you see the bottom right hand corner and you see the final product. What happens in between is the weaving, and weaving happens through a process of warp and weft, where you have two threads going and interlocking, through which a weaving pattern emerges, and you finally have the final product, which can be as thick or as thin or as delicate as you would like it to be. हाँ जी जीना जी. Can you please go next slide? Next slide, please. तो इसमें हमारा जो वीविंग का पूरा प्रोसेस है वो इसमें दिखाया है। जैसे कि फर्स्ट हमारा कोन है, हमारा जो थ्रेड है वो कोन के फॉर्म में आता है। तो फिर उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई कपड़ा बनाना होता है तो हमने किस प्रकार का कपड़ा बनाना है, जैसे वो किस पर्पज से उसको हम बना रहे हैं। जैसे शॉल स्टोल बना रहे हैं, या फिर साड़ी बना रहे हैं, या फिर कोई यार्डेज बना रहे हैं गारमेंट्स के लिए। तो उसका हम पहले मैं उसका वो प्लान तैयार कर लेता हूँ कि अपने दिमाग से ऐसा ये कलर उसमें लगेंगे और ये धागे उसमें लगेंगे, इतने लगेंगे करके। तो उसका फर्स्ट हम वो प्लान तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारा वो वॉर्पिंग का होता है। जो सेकंड जो वॉर्पिंग दिखाया गया है, वॉर्पिंग ड्रम इसमें दिखाया गया है, तो उसमें हम वॉर्प कर लेते हैं। उसका जो वर्टिकल थ्रेड जो होते हैं उसका जो कपड़े का जो बेस होता है वो हम वॉर्पिंग में उसको सेट कर लेते हैं, वॉर्पिंग तैयार कर लेते हैं, तो उसे वॉर्पिंग बोलते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रीलिंग का होता है। जो हम कपड़े में जैसे हमने वॉर्प और वेफ्ट का दो चीजें जो होती हैं, जो वेफ्ट में जो चलेगा, जो थ्रेड वेफ्ट में चलेंगे उसके हम रीलिंग करते हैं, उसमें हम बॉबिन भरते हैं उसकी, तो उसको रीलिंग बोलते हैं। तो उसके बाद जो फिर अगला जो स्टेप होता है हमारा कि हमने कपड़े में कौन सी डिजाइन बनानी है, किस प्रकार के हमने डिजाइन कपड़े में लानी है, डायमंड लाना है, हेरिंगबोन लाना है, या फिर कोई अलग अलग प्रकार की जो हम डिजाइन करते हैं या उसकी डायमंड मिक्सिंग करते हैं, तो उसकी ड्राफ्टिंग होती है। तो इस ड्राफ्टिंग का मतलब हमको लूम में सेट करना है कपड़े को कि किस प्रकार, जैसे हमारे शाफ्ट होते हैं 4 शाफ्ट, 6 शाफ्ट और 8 शाफ्ट में हम काम करते हैं अभी। तो अलग अलग शाफ्ट में किस प्रकार डिजाइन के अनुसार हमको
धागे डालने होते हैं तो उसको ड्राफ्टिंग करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप वो तब हमारी वीविंग शुरू होती है। वीविंग में हमारा कपड़ा जो है फिर जैसे ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर उसमें हमारा जो काना और बाना मिक्स होके कपड़ा तैयार होता है, तब वीविंग होती है। और वीविंग होने के बाद जैसे कपड़ा जो हमारा लूम से उतर जाता है, लूम से जो कपड़ा उतर के फिर वो प्लीटिंग में जाता है। वहाँ हम कपड़े को जैसे हम अगर 20 पीस का रोल एक बार कर लेते हैं तो फिर उसका अलग अलग पीस में करते हैं, फिर उनकी नॉटिंग करते हैं, उनकी फिनिशिंग करते हैं, कोई थ्रेड असेंबली हो जाता है तो इसके हम निडल से उसको फिर वो तागे को सेट करते हैं, तो उसको क्लिपिंग और फिनिशिंग करते हैं, तब हमारा कपड़ा बन के तैयार होता है। हाँ, तो जीना जी मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगी क्योंकि मेरे को एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। तो जीना जी is basically explaining this whole beauty of the weaving process. As you see, before it goes on to the loom, where it's actually woven, that's a hand loom, and you can see a woman's hands there, and she's weaving it. Before it even goes on to the loom, it goes through 4 different steps before it even reaches the weaving stage. So Jeena ji has explained about the warp plan, the warping drum, the reeling, the drafting, where it's all put together as a design element of whether it's a shawl, whether it's a scarf, whether it's a stole. And after it's completely finished in mind and on paper is when it finally goes on to the loom for an actual weaving. It then ends with the clipping where you have the finished product where the clippers actually tie the knots, make the finished product, and what you see right at the end, what you get is a serious complex process. तो जीना जी अब आप बताइए इसके बाद का. Next slide, please. इसमें ये दिखाया गया जैसे हमारा जो ये पीछे वॉर्पिंग ड्रम है, वॉर्पिंग बीम में थ्रेड लपेटा हुआ होता है। तो फिर इसके बाद इधर जो हील्ड दिखाई गई हैं 2, तो हील्ड हमारा जो वॉर्प का जो थ्रेड होता है, जो हमारा वर्टिकल जो थ्रेड होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। तो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, तो उनके बीच से हमारा वेफ्ट का जो थ्रेड जाता है, तो इससे फिर वीविंग होके हमारा कपड़ा तैयार होता है। वो फिर इधर जो एक बेलिन दिखाया गया है, इसमें कपड़ा लपेटा जाता है। तो इसमें कि जैसे वॉर्पिंग धागे से वीविंग होके फिर कपड़ा लपेटा जाता है, ये दिखाया गया है इसमें। तो ये हमारी इसमें हम वॉर्पिंग के बारे में दिखा रहे हैं। तो हम वॉर्प हमारा कैसे लगता है वॉर्प प्लान। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा जैसे कोन दो तरह से हम वॉर्पिंग हम 2 तरह से करते हैं, एक कोन से करते हैं और एक रील से करते हैं। बेसिकली हम जो ऊन का वॉर्प लगाते हैं वो कोन के द्वारा करते हैं। जैसे इधर दिखाए गए हैं वो कोन हमारे रखे हैं अलग अलग कलर के, तो कोन से हम डायरेक्ट वॉर्पिंग करते हैं। और जब हम लिनन और कॉटन का वॉर्प लगाते हैं तो फिर उनकी पहले रीलिंग करते हैं, रील में भरते हैं, उसके बाद फिर ये रील के द्वारा वो वॉर्पिंग करते हैं। यहाँ नीचे जो ड्रम में दिखाया गया है वो वॉर्पिंग हो रही है हमारी। इसमें वॉर्प पूरा हो चुका है, जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर वॉर्पिंग हो रही है। और फिर ये इस प्रकार ये पूरा जैसे हमारा जितना चौड़ाई का हमको जैसे कपड़ा बनाना होगा, जितनी हमारी विड्थ होगी कपड़े की, उतना हमको उतनी विड्थ का हम वॉर्पिंग कर लेते हैं। तो एक बार में हम 20 पीस का या 30 पीस का कर सकते हैं, या 100 मीटर का हम वॉर्पिंग कर लेते हैं। जीना जी मैं बस 2 सेकंड इसमें I think Jeena ji is explaining it pretty easy and simple. I don't want to interrupt his flow. In case people find it difficult to understand, please share it in the chat box, and only then will I interrupt Jeena ji's flow here. Thank you. तो ये वाली इसमें हम
रीलिंग और ड्राफ्टिंग के बारे में दिखा रहे हैं। तो हमारा जो उधर है ये वो रीलिंग कर रहे हैं, वो रीलिंग कर रहे हैं। जैसे वेब पे हम चलाएंगे तो ये हमारा रीलिंग भी हमारा तागा जैसे दो प्रकार, एक तो कोन में आता है और एक ये जैसे सिल्क होता है, कॉटन होता है, कॉटन होता है, ये हमारा हैंग में आता है। तो उसको हम हैंग से फिर बॉबिन में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस बॉबिन से हम फिर वेब पे चलाते हैं। तो ये रीलिंग हो रही है। और ये जो नीचे ये रीलिंग की एक वीडियो है यहाँ पर। कैन यू प्लीज प्ले द वीडियो? Yes, I'll just play it. सर जीना जी वो वीडियो हो गया है। तो नीचे फिर जैसे हमारा वॉर्प लग के, जैसे वॉर्प हमारा वॉर्पिंग पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको एक बेलन में अनलोड करके लाते हैं। तो उसके बाद हम लूम में ले जाते हैं उसको, वो बेलन को, वॉर्प बीम को। तो फिर लूम में ले जाके उसकी ड्राफ्टिंग होती है डिजाइन के अनुसार। जैसे हमारे यहाँ ड्राफ्टिंग हो रही है, इन दो जगह यहाँ भी ड्राफ्टिंग हो रही है। तो हम हमारे अलग अलग जैसे 6 शाफ्ट, 8 शाफ्ट या 4 शाफ्ट, जितनी की भी वो डिजाइन होगी, जितनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होती है उतने शाफ्ट हम बढ़ा देते हैं। 4 शाफ्ट और 6 शाफ्ट और 8 शाफ्ट में भी हम काम करते हैं। तो अलग अलग शाफ्ट में डिजाइन के अनुसार हम ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे उसका सीक्वेंस होता है अलग अलग, 1 2 3 4 या 7 5 6 7 ऐसे अलग अलग डिजाइन के साथ सेट करके ड्राफ्टिंग करते हैं। तो जो डिजाइन जिस प्रकार की जो डिजाइन हमको कपड़े में निकालनी होती है उसका हम डिजाइनिंग यही ड्राफ्टिंग में इसको सेट करते हैं। तब हमारा कपड़े में फिर वो डिजाइन करवा पाता है। तो इसमें हमारा वीविंग की जो प्रोसेस है वो पूरी ये दिख रही है। इसमें भी हमारे वीडियो, इसमें भी वीडियो हमने बना रखे हैं। इसमें वीविंग का दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ भी वीविंग हो रही है, इसमें भी वीविंग हो रही है। तो वीविंग में हमारा जैसे 3 स्टेप होते हैं हमारे वीविंग करते समय। फर्स्ट हमारा शिफ्टिंग होता है, जब हम सेट करते हैं तो शेडिंग। फिर सेकंड हमारा फर्स्ट हमारा शिफ्टिंग होता है, फिर बीटिंग होता है, शेडिंग होता है। जैसे सेट वो हम पैर से करते हैं, पैर दबाते हैं तो हमारा सेट खुलता है तो उसे शेडिंग बोलते हैं। ऐसे हमारे वॉप के जो तागे ऐसे 2 भाग में ऐसे खुलते हैं तो वो शेडिंग। फिर दूसरा हमारा होता है स्टेप पिकिंग। तो शटल से हम जैसे वेब का तागा डालते हैं तो उसको पिकिंग बोलते हैं। तो फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा बीटिंग। तो ये 3 शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग की जो प्रोसेस है उससे हमारी वीविंग होती है। इससे हमारा कपड़ा तैयार होता है। ये चौथी, यहाँ पर हमारा चौथी स्लाइड में कपड़ा बन के तैयार हो गया है, लूम से उतर रहा है, ये दिखाया है। तो ये जो वीडियो है, प्लीज कैन यू प्लीज प्ले द वीडियो?
तो तो जैसे हमारा अभी दिखाया गया था कि कपड़ा किस प्रकार वीविंग होती है कपड़े की, तो अलग अलग डिजाइन के अनुसार अलग अलग वीविंग होती है अलग अलग उसमें। तो जैसे हमारा कपड़ा बन जाता है उसके बाद लूम से उतर जाता है, तो फिर उसकी वो हमारा फिनिशिंग और चेकिंग होती है उसकी। तो क्लिपिंग सबसे पहले हम जैसे अगर कपड़ा जैसे हम बिनते हैं तो 20 टुकड़ा या 30 टुकड़ा कपड़ा एक बार में उसका वॉब लगा लेते हैं, तैयार हो जाता है। तो फिर यहाँ क्लिपिंग रूम में आके फिर उसकी अलग अलग पीसों में उसको करते हैं। तो फिर उसकी नोटिंग की जाती है। उसकी नोटिंग करने के बाद अगर कोई थ्रेड हमारा मिस हो जाता है वीविंग करते समय, तो उसको नीडिल के द्वारा फिर शिफ्ट किया जाता है। तो उसके बाद फिर जैसे पूरा चेक हो जाता है, क्लिपर से चेक कर लेते हैं, तो फिर हमारे फिर उसको फिर हमारे मास्टर हैं उनके द्वारा फिर उसको चेकिंग की जाती है कि पूरा जैसे हो जाता है कपड़ा तैयार, तो फिर इसकी चेकिंग की जाती है। तब हमारा कपड़ा फिर वॉशिंग के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे चेकिंग होने के बाद कपड़ा क्लिपिंग और फिनिशिंग होने के बाद फिर चेकिंग होने के बाद फिर वॉशिंग के लिए जाता है। वॉशिंग का हमारा भी जैसे हमने ये थोड़ा अभी शुरू किया है, इसमें कॉटन और लिनन का हम खुद वॉशिंग हैंड वॉश करते हैं। तो हम वॉशिंग भी हम हमारे नेचुरल रीठा होता है, पौधा होता है रीठा, उसके द्वारा हम वॉशिंग करते हैं और फिर हाथ से प्रेस करते हैं। अभी हम हमारा एक छोटा सा शुरू कर रखा है हमने, जिसमें वॉशिंग और आयरन
जैसे वॉशिंग होने के बाद फिर आयरन होने के बाद फिर हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसमें हमारा दिखाया गया कि क्या क्या प्रोडक्ट हम बनाते हैं। हम बेसिकली शॉल, स्टोल, फिर स्कार्फ ऐसे बनाते हैं। शॉल, स्टोल, स्कार्फ, और हम साड़ी भी, पहले हम वूलन की साड़ी बनाते थे, तो अभी हमने शुरू कर रखा है, हम कॉटन और लिनन की साड़ियाँ भी बनाते हैं। ये जो हमारी महिलाएं हैं जो जिनने साड़ियाँ पहन रखी हैं, ये हमारे क्लिपिंग की महिलाएं क्लिपिंग करती हैं हमारे सेंटर में। तो अभी ये कभी कभी मॉडलिंग भी कर लेती हैं। तो हमने फिर साड़ी, और फिर हम कुछ गारमेंट भी बनाते हैं। जैसे हम गारमेंट गारमेंट के लिए हम कपड़ा बनाते हैं। कपड़े जैसे हम कुछ कपड़ा भी बनाते हैं, या ड्रेस और भी बनाते हैं गारमेंट से, तो हम गारमेंट बनाते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा रोक के बताना चाहती हूँ, जो जीना जी मेंशन करना भूल गए अपने बारे में, वो ये है कि हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट्स आती हैं कस्टमाइज्ड साड़ीज़ की। We've had requests for customized sarees. Jeena ji has sat down and created designs, and we've had very, very happy customers with those customized woolen sarees. इसमें मैं थोड़ा मेरा विभिन्न में मेरी जर्नी कैसे विभिन्न में कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो इसमें जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एक लाइन ऐसे मुझे शौक था कि मैं कुछ अपना करूँ, कुछ प्रोडक्ट बनाऊँ, कुछ मतलब अपना कुछ करूँ, अपनी कला को वो करूँ। तो विधि में मेरा फिर मैंने इसकी 3 ईयर्स से टेक्सटाइल से 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया था अल्मोड़ा में। तो उसके बाद फिर मैंने WSC चमोली वीवर सर्विस सेंटर है चमोली, तो वहाँ पे मैंने मास्टर ट्रेनिंग करी थी। तो मास्टर ट्रेनिंग के लिए ये मेरा छोटा सा वो यादगार दिन जैसा है, जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ, जब मैं वहाँ गया था। तो ये यादगार दिन जैसा है, उसको मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो जब मैं मुझे एक NGO रानीखेत में NGO थी ग्रास रूट करके, उसके द्वारा वहाँ भेजा गया था। तो मेरे से यहाँ कहा गया था कि वहाँ आपका सब रहने खाने का स्टे का मतलब अरेंजमेंट वहाँ है। तो मैं यहाँ से चले गया था अकेले ही, बिना कुछ तैयारी किए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये भी पता नहीं था कि इंटरव्यू आज है। मैंने सोचा आज जाऊँगा तो कल शायद होगा। तो जब मैं पहुँचा वहाँ शाम को 4:45 लगभग हो गए थे, 15 मिनट में ऑफिस भरना होने वाला था। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि आज इंटरव्यू होने वाला है मेरा, उसी दिन इंटरव्यू होने वाला है। तो फिर बाहर बहुत ही बारिश लगी थी, बहुत तेज बारिश लगी थी। 15 मिनट बचे थे, तो सब लोग कहने लगे कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा अभी। तो फिर मैं तैयार हो गया इंटरव्यू के लिए। 4-5 लोग बैठे थे, तो सवाल करने लगे फटाफट, तो मैं उत्तर देते रहा। कुछ थ्योरी वाले थे, कुछ टेक्निकल थे। तो मैंने तो सीखा तो था ही, मैं जवाब सबका जवाब देते गया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको कि वो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। तो मैं सर्टिफिकेट तो ले नहीं गया था, और मैंने 5 ईयर्स किया भी नहीं था, मैं 3 साल लगभग किया था। तो मैंने बोला कि 5 ईयर्स तो नहीं है, 3 साल का मैं दे सकता हूँ, और अभी नहीं है, मतलब बाद में दे सकता हूँ। तो फिर उनने आपस में वो करके फिर मेरा सिलेक्शन तो हो गया था। तो फिर जैसे सिलेक्शन हो गया था, तो फिर उन्होंने बोला कि अब 2-3 दिन की छुट्टी थी, इसके बाद तो फिर आपको ज्वाइनिंग करना होगा। तो फिर मैंने रहने के लिए मैंने बोला कि मैं कहाँ, स्टेट मेरा कहाँ है, मैं कहाँ रहूँगा। तो उन्होंने बोला कि रहने का तो कुछ अरेंजमेंट है नहीं इधर, तो आपको यहीं ऑफिस में ही रहना पड़ेगा। तो फिर मुझे बाहर बहुत तेज बारिश लगी थी, सब लोगों की छुट्टी हो गई थी, घर चले गए थे। तो वहाँ जो पियोन थे वहाँ के, वो वही रहे थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि उनके साथ मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि जब शाम तो पियोन भी घर चले गए, मुझे अकेले छोड़ दिया वहाँ। तो फिर मुझे उस दिन
तो ऑफिस की टेबल में निकालनी पड़ी थी वो रात, और उस सोया था। तो मैं घर वालों के लिए चिट्ठी लिया था कि ऐसा है, हाँ ये हो गया, मेरे लिए भेजो भेजो। लेकिन और मेरे फ़ोन की भी सुविधा नहीं थी कि फ़ोन कर लें तुरंत, फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी थी उस दिन रात को टेबल के ऑफिस में, ऑफिस के टेबल में मैंने चिट्ठी लिखी थी सोया नहीं था। फिर मैंने चिट्ठी भेजी थी वो चिट्ठी जब उसके बाद 1-1.5 महीने बाद घर पहुँचा तो तब वो चिट्ठी पहुँच गई थी। तो ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था। तो उसके बाद चलो हो गया था, फिर मेरी ट्रेनिंग तो पूरी हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से आया ट्रेनिंग पूरी करके, तो फिर मैंने पहले अल्मोड़ा में एक टंडन जी कुमाऊं लंच करके एक फैक्ट्री थी कोई, उसमें मैंने कुछ दिन फिलिपिन और वीविंग इस तरह काम किया था। पर मेरा मन, मैं खुश नहीं था कि ऐसे काम करने से। फिर मैं लुधियाना चले गया था। मैं चाहता था कि मैं अपने इस स्किल को बढ़ाऊँ और लोगों तक फैलाऊँ। लेकिन जब मैं काम करता था वीविंग का या किसी के फैक्ट्री में ऐसे पर्सनल, तो मुझे खुशी नहीं होती थी। फिर मैं लुधियाना चले गया था, वहाँ भी मैंने एक फैक्ट्री में ऐसे वार्पिंग मास्टर के रूप में काम किया था। वहाँ भी मेरा मन लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं केवल एक वर्कर की तरह काम कर रहा था। हाँ, या वीडिंग वर्किंग मास्टर दिन था वही कर रहा था। लेकिन मेरी सोच थी कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन उस समय मेरे पास न पैसे थे कि मैं अपना सेंटर खोलूँ या अपने रूम खरीद सकूँ, ऐसा था नहीं। तो मुझे काम ही करना था उसमें। तो फिर अचानक एक दिन यहाँ, तो फिर उसी वक्त मैं इधर चिराग एनजीओ है, चिराग एनजीओ, तो उसमें मिस्टर लाल साहब जो कि चिराग के डायरेक्टर हैं, उनका भी एक सपना था कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूँ, इस क्षेत्र में कुछ रोजगार के अवसर पैदा कर सकूँ। यहाँ के जो युवा हैं वो बेरोजगार देखते थे उनको, तो उनको भी दुख होता था। तो वो उनने भी यही सोचा कि मैं वीविंग सेंटर खोलूँ या कपड़ा बना के इस प्रकार का कपड़े का जो रोजगार करूँ। तो उनने फिर वो चमोली, जो WSC सेंटर चमोली है जहाँ मैंने मास्टर ट्रेनिंग की थी, उनने वहाँ संपर्क किया। तो वहाँ उनके द्वारा फिर मेरा एड्रेस उनको दिया गया, यहाँ से मास्टर ट्रेनिंग करके गए हैं, तुम्हारे इलाके के हैं, तो आप उनको बुलाओ। तो फिर हमारे घर में फिर चिट्ठी आई होगी, मैं पिताजी के पास आई थी। पिताजी ने वो फिर मुझे पोस्ट की थी वो चिट्ठी। तो मैंने जब वो चिट्ठी पढ़ी थी, वहाँ मैं लुधियाना था तब, तो फिर मैं फिर बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सीधे वहाँ से आ गया था जॉब छोड़ के। क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा था कि शायद इससे मेरा जो सपना है वो साकार हो पाएगा शायद। तो मैं सीधे घर आ गया था। फिर मुझे लाल साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था वहीं हमारे गांव के 1-2 किलोमीटर दूर। उनका एक साइड एक ऑफिस था, तो वहाँ बुलाया था। तो वहाँ फिर इंटरव्यू हुआ था, बातचीत हुई आपस में हमारी। तो उनको भी उनका भी वही सोचना था, उनका सपना भी वही था कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए, यहाँ कुछ ऐसा खोला जाए कि अन्य लोगों को रोजगार मिले। और मेरा भी यही सपना था कि मैं अपनी स्किल को और फैलाऊं, ज़्यादा लोगों में इसको और लोगों को बांटूं, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा एक काम आगे को भी बढ़े। मैं इसको अपने तक ही सीमित रखना नहीं चाहता था। तो हम दोनों का एम एक ही था, लगभग मिल गए थे हमारे विचार। मैं भी वही चाहता था और वो भी वही चाहते थे। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर सन 4 नवंबर 1999 में मैंने ज्वाइन किया था कुमाऊं उद्योग। तो फिर 2 महीने, लगभग 2 महीने मुझे सेंटर को सेटअप करने में लगे। मैं खुद लुधियाना गया, वहाँ से हैंडलूम लेके आया और उसके जो एक्सेसरीज होती हैं और यार्न वगैरह जो ट्रेनिंग के लिए होता था वो सब लाया। 2 महीने में मैंने वो सेंटर सेटअप किया। अकेले था मैं तब, मेरे साथ कोई नहीं था। और इस क्षेत्र के कोई भी लोग ये नहीं जानते थे कि कपड़ा कैसे बनता है, कैसे इसकी लूम होती है, कैसे
बनता है, तो मुझे अकेले ही करना था सब कुछ इसमें, तो मैंने सेटअप किया था। फिर 1 जनवरी 2000 से हमारा इस सेंटर की ओपनिंग हुई थी। तो इसमें हमने पहले हमारे चार रूम से हमने ओपन करा था सेंटर को। 4 हैंड रूम थे हमारे, 6 या 7 लोग फर्स्ट में ज्वाइन करा था, 6 7 लोगों ने। तो फिर मैंने उन लोगों को ट्रेनिंग कराई, 6 महीने की ट्रेनिंग दी उनको। ऐसे हाथ पकड़ के सिखाता था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। बहुत कठिनाई होती थी उनको, खासकर अगर कोई किसी ने वो देखा भी नहीं होता है, किसी को पता भी नहीं था कि कपड़ा बनता कैसे है, और जैसे धागे का कपड़ा कैसे बनता है, तो नई चीज़ थी, तो उनको सिखाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसमें। तो मैंने हाथ पकड़ के ऐसे करके उनको सिखाया था। ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी। तो धीरे धीरे फिर हमारा बढ़ते गया सेंटर। तो फिर हम ऐसे ऐसे करते करते साल उनसे शुरू किया था। तो फिर हम हर साल 2 या 3 ऐसे नए ट्रेनिंग को लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो फिर उसके बाद उनको फिर हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो ऐसे करते करते आज अभी वर्तमान में वहाँ हमारे सेंटर में 18 हैंडलूम है, और 4 हेल्पर हैं, 7 क्लीपर्स हैं, और स्टाफ मिला के टोटल कुल मिला के अभी वहाँ 29 लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो मेरा सपना था वो धीरे धीरे साकार हो रहा था। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि मैंने इतने लोगों को वो काम दिया, इतने लोग उससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तो अभी एक छोटा सा है, छोटा सा हमारा सेंटर है। मैं चाहता हूँ कि हमारा सेंटर और आगे बढ़े, हम नई नई चीज़ में उत्पादन करें। तो पहले हमने वूलन से शुरू किया था। वूलन में ही ज़्यादा काम करते थे, वूलन के शॉल, स्टोल, स्कार्फ, यार्डेज ऐसे बनाते थे। तो अभी पिछले 2 साल से हमने कॉटन और लिनन में भी काम करना शुरू किया है। तो जो अभी तक हम इतने साल से वूलन में काम करते आए थे, तो हमारा विभू का वूलन में सेट हो गया था हाथ। तो उसको हम अगर कोई नया चीज़ करना चाहें, जैसे हमको लिनन की तरह, कॉटन की तरह ले जा रहे हैं, तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसका उसका जो अलग होता है वीविंग का, उसकी थ्रेड की थिकनेस अलग होती है, उसका जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है, उसका काउंट अलग होता है, रीड इसमें अलग लगती है, हील्ड अलग लगते हैं। तो फिर इसमें काफ़ी परेशानी भी होती है। तो उसके लिए फिर हम लिनन में वीविंग करने के लिए फिर हमको ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ा। हम कोलकाता में गए थे, सीआरसी का सेंटर था एक, शुलिया करके एक गाँव में। तो वहाँ हम लिनन की ट्रेनिंग के लिए गए थे। तब से हमने फिर लिनन का शुरू किया, लिनन कॉटन का हमने शुरू किया है। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि हम जैसे अभी लिनन कॉटन में कर रहे हैं, तो आगे और मटेरियल में भी करें, जैसे सिल्क में भी करें या निटल में करें। तो नए नए मटेरियल के साथ काम करें। और अभी हम जैसे करते हैं, हम हमारा जो यूज़ करते हैं अभी यार्न, वो एजो फ्री केमिकल डाई होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम नेचुरल डाइंग में काम करें, कि हम हमारा हर चीज़ नेचुरल हो, हम नेचुरल डाइंग करें। तो उसके लिए भी हम नेचुरल डाइंग के लिए भी मैं और हमारे 2 इधर उसकी भी हमने ट्रेनिंग ले रखी है। बेरीनाग गए थे हम, अवनी सेंटर है वहाँ नेचुरल डाइंग, तो वहाँ से हमने ट्रेनिंग भी की है। जिससे हमारा ये स्टेप है अगला कि हम नेचुरल डाइंग का शुरू करें। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा नेचुरल डाइंग का भी अपना यूनिट हो, और वॉशिंग का भी हमारा वॉशिंग अभी हम कॉटन में वॉशिंग करते हैं, लेकिन वूलन का जो प्रोडक्ट है उसे हमको बाहर भेजना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा अपना वॉशिंग यूनिट हो और नेचुरल डाइंग का सेंटर अपना हो, जिससे कि हम अपना अपने फिनिश हम खुद कर सकें, और लोगों को भी हम इसमें रोजगार दे सकें, और हम अपने इस काम को बढ़ा सकें और इस क्षेत्र में रोजगार भी पैदा कर सकें। ऐसे हमारा अलग अलग विचार हो कि हमारे अलग अलग मटेरियल के साथ काम करके अलग सेंटर भी हो, और वॉशिंग यूनिट अपना हो, नेचुरल डाइंग अपना हो, जिससे इस कार्य को, मेरा जो सपना है धीरे धीरे ऐसे साकार हो, और लोगों में यहाँ इस क्षेत्र से अलावा और क्षेत्रों में भी ये काम और क्षेत्रों में भी फैले, तो जिससे और लोगों को भी रोजगार मिले और वो अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू।
थैंक यू जीना जी। आप जब बात कर रहे थे बीच में काफी सवाल आए हैं, लोगों को बहुत कौतूहल है। एक तो वीडियोस देख के बहुत फैसिनेशन हुआ है लोगों को। तो हसीब जी पूछ रहे हैं, हम जो ये क्लॉथ वीव करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि मैंने उनको बोला था कि हम टेबल लूम्स पे ये हैंडलूम वीविंग करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इस क्लॉथ को क्या बोलते हैं, जो वीव करके क्लॉथ जो बनता है उनको क्या बोलते हैं हम? क्लॉथ को तो हम जैसे क्लॉथ तो क्लॉथ यार्डेज। हाँ, तो आप अलग अलग डिजाइन्स के लिए अलग अलग नाम है या वैसा कुछ नहीं है, या अलग अलग मटेरियल ही है बस? अलग अलग डिजाइन का अलग अलग नाम, डिजाइन का तो अलग अलग नाम होता है। जैसे डिजाइन हम जैसे डालेंगे तो फिर जैसे हेरिंगबोन, डायमंड, ऐसे करके अलग अलग का बैग, हैंगिंग कॉम, ऐसे अलग अलग डिजाइन का तो डिजाइन से भी होता है नाम, डिजाइन के अनुसार भी नाम होता है। और अब हम जैसे कपड़ा जिस प्रकार का बनाएंगे, शॉल स्टोल, वो का नाम भी अलग होता है। हम बिनते तो हैंडलूम में ही है, टेबलूम में होता है, हैंडलूम में फ्रेम लूम होता है हमारा। फ्रेम लूम में हम जैसे पैडे और जैसे हैंडलूम में बनते हैं, तो अब हम तो क्लॉथ ही बोलते हैं वैसे कपड़ा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है, अंजलि जी पूछ रही थी कि उनको लगा था कि ये जो है ये अल्मोड़ा ट्वीड ट्रेडिशन से, परंपरा से ये वीविंग आई है। तो उनको ये सुन के मतलब वो पूछ रही थी कि आप कह रहे थे कि यहाँ कोई वीविंग नहीं करता था, तो पूछ रही थी कि ये अल्मोड़ा की जो ट्वीड का वीविंग ट्रेडिशन था उससे कुछ जुड़ा है या कोई तालमेल है उसके साथ? इसके साथ मेरा तो तालमेल, मेरा तो इसके साथ तालमेल ही है अल्मोड़ा के। वैसे मैंने अल्मोड़ा पॉलिटेक्निक है, वहाँ अल्मोड़ा में पॉलिटेक्निक थी, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया था इसका। तो मैं पहले से मैंने पहले नहीं देखा था, तो पहले मुझे भी पता नहीं था कपड़ा कैसे बनते हैं। तो मैं पहले एजुकेशन लाइन में था, फिर एजुकेशन कर रहा था। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं सोच रहा था कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, क्या करूँ फिर। तो तब मैंने फिर वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की, तो इससे तो इसका मेरे में तो कुछ संबंध है, जो पहले से गिनते हैं। मैंने तो ट्रेनिंग करके सीखा है। हमारे परिवार से और कोई इसमें जुड़ा नहीं है, पहले से मतलब मैंने कुछ देखा नहीं है। और जीना जी, अंजलि जी पूछ रही हैं फिर से कि आपने एक बहुत बढ़िया चीज बोली है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग करें। तो वो पूछ रही हैं कि इसको रेप्लिकेट करना अलग अलग जगहों पे, स्केल पे मुमकिन है या नहीं है, और ये कैसे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, यहाँ के मतलब लोग तो इच्छुक हैं, बहुत लोग भी इच्छुक हैं, और आवश्यकता भी है लोगों को, क्योंकि यहाँ लोगों के पास कमाई के साधन बहुत कम है। लोग बेरोजगारी बहुत है लोगों में। तो चाहते तो हैं बहुत सारे लोग, यहाँ भी जैसे हमारे सेंटर में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम आना चाहते हैं, क्या करते हैं। तो इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती, हमारी इतनी कैपेसिटी की हमारे लोग जितनी आ सकती थी वो ले आ गया, और हम उसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, हमारे पास अभी जगह नहीं है। तो और क्षेत्र में हम ऐसे कोशिश करके देख सकते हैं, जहाँ की जगह हो, जहाँ मतलब लोग चाहते हैं, तो कर सकते हैं सुधार। Can I? संभावना। Yeah, Gina ji, thank you. I also wanted to add to that. A lot of the ability to scale up capacity depends upon the market also. While जैसे जीना जी बोल रहे हैं कि there is a requirement amongst the community for more livelihood opportunities, but as an organization what we also have to do is we have to balance it with the requirements of the market.
we can so something which I did not mention in when I was talking about our marketing channels is that we have recently started exploring the exports market also with a view to expand our customer base and to expand our demand. So once that happens, then of course it is very easy to increase capacity and provide livelihoods to more people. But it is totally dependent on, like I said, the ability of the market capacity. It's not an easy thing to do. We would, of course, love to provide livelihoods to as many people as possible, but it is to an extent limited by the capacity of the market to bear that increased production. So, as an example, we were seeing that because winters are becoming, broadly speaking, less and less intense, and they are also becoming shorter. So, which is why we moved into cotton and linen from wool. I mean, we obviously do wool. Wool is our mainstay, but then we moved into cotton and linen also, so that we were able to cater to a bigger market within North India as well as other parts of India. So ultimately, the ability to expand production and to expand capacity depends on the offtake in the market. So that's where the challenge lies. I hope I answered that question. Another question which I saw, a very good question which came from Anjali, was how a lot of our designs are very contemporary, and how do we sort of come up with those contemporary designs. So Jeena ji is our main designer, and we keep a close track of what's happening in the market, the trends, and a lot of that comes from what I had mentioned initially, that we participate in retail exhibitions. Of course, a reason for doing that is to reach out to our customers, to understand what different customers' requirements are, and also to see what similar organizations like ours, i.e., competition, is doing. So, exhibitions and reaching out directly to customers is a very good way of understanding what their requirements are. And when customers enter our shops here in Kumaon, we always encourage them to give us feedback, to give us suggestions, and we also, using our social media, reach out to customers, asking them for inputs, asking them for advice. So ultimately, it's a two-way process. We also try and get feedback from our customers, and a very good example of that is what Anamika mentioned some time back about sarees. So a few people came back to us and said, why don't you make this design, this particular design, or make sarees in this particular try and keep up with the changing trends and changing. I think your voice is gone, Anurag. Yeah, I think, yeah. So you can take over. So no, just I think Anurag has kind of answered that very well. Where it actually is a two-way process, like he was mentioning.
We did have customers coming in saying, how about trying out this color combination, or this is something that would work very well in our profession and we can wear it, you know, not just for special occasions, but also at workwear where it looks very classy. And we have incorporated that feedback. Jeena ji has come up with some great designs, and we have, like I had mentioned before, very satisfied customers with very unique designs for their own sarees. So, जीना जी, आपके लिए एक सवाल है. पूछ रही हैं, बहुत बढ़िया सवाल है. ये कह रही हैं कि ये जो डिजाइन्स बदलते रहते हैं, आप जो अलग-अलग डिजाइन्स बनाते हैं, ये वीवर्स के लिए ये डिजाइन्स बार-बार जो बदलना या पैटर्न बदलना, ये वीवर्स के लिए कितना आसान या मुश्किल होता है अडॉप्ट करना? मुश्किल तो होता है. जैसे हम कोई नई डिजाइन बनाते हैं तो वीवर के लिए मुश्किल तो होता है. तो मुझे पहले मैं उसको सेट करता हूँ, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी और उसका पैक प्लान चलाने का जो पैक प्लान क्या होगा, उसका टाई अप क्या होगा, फिर उसको लूम में कैसे. तो फिर वीवरों के हम एक उनकी डायरी होती है, तो हम उसमें फिर लिख के उनको देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, फिर ये हिसाब से इसके बाद ये चलाना है, इसके बाद ये चलाना है. तो इसमें जैसे कोई नए डिजाइन करते हैं तो उसमें फिर फर्स्ट पीस बनाने में 1-2-3 दिन तो बहुत होता है, परेशानी होती है. तो होता है उनको भी, मतलब फिर जैसे 3-4 दिन के बाद जब बनाने लग जाते हैं तो फिर सीख जाते हैं. क्योंकि अब वैसे जो हमारे वीवर हैं काफ़ी समझदार हैं, मतलब तो हो गया है ऐसे बदल, मतलब जैसे कहीं लोग एक ही प्लेन में भी बनाते हैं. कई सेंटर में मैंने देखा है बहुत जगह बाहर, तो वो केवल उसी को ही चलाते हैं. लेकिन हमारे हम चेंज करते रहते हैं नई नई डिजाइन, तो वीवर भी सीख रहे हैं, मतलब सीख है, वो जल्दी पकड़ लेते हैं. थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो सीख जाते हैं. आप एक जीना जी एक उदाहरण देना चाहेंगे? जैसे हम अनुराग जी भी जो मेंशन कर रहे थे कि हम मेरिनो वूल में ही काम करते थे सिर्फ काफी सालों तक. तो जब हमने लिनन और कॉटन शुरू किया, तो आप वो थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर एक जरा बता दीजिए कि आप जब वूल से लिनन और कॉटन ही आपने शुरू किया तो क्या प्रोसेस था? हाँ, तो उसके लिए जैसे हमको बेसिकली जो एक्सेसरीज होती हैं वो भी थोड़ा चेंज करनी पड़ती हैं. विभिन्न की जो एक्सेसरीज, जैसे हील्ड हो गया, उसकी जो रीड होती है वो चेंज करनी पड़ती है. उसका जो ड्राफ्टिंग का है वो चेंज करना पड़ता है. तो उसके लिए बेसिकली एक अलग इसकी जो स्ट्रेंथ अलग होती है, उसमें वो जो यान का है उसे चिपक जाता है. जैसे वूलन का आदत होती है, लिनन चिपक जाता है आपस में. तो फिर हम इसके लिए तो हमने ट्रेनिंग के लिए भी गए थे, हम कोलकाता गए थे, मैंने बताया था उसकी ट्रेनिंग के लिए गए थे. तो वहाँ हमने खाली बेसिक, मतलब वो कैसे चला रहे हैं थोड़ा सा हमको देखा था. तो उसमें फिर यहाँ आके हमने फिर खुद प्रैक्टिस करी थी कि इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे. अगर फिर पहली बार 1-2 बार हमारा सही नहीं हुआ, फिर हमने उसको चेंज करके देखा कि 1% करके देखते हैं. 2% में चल नहीं रहा था तो फिर हमने 1% करके देखा. फिर हमने उसको पीछे से ऐसे जाम वो लगा के देखा टाइया. फिर हम उसको दूसरे से करते लगा, हम उसको मतलब स्ट्रगल करते गए. तो आखिर अब हम वहाँ केवल एक वीवर को ले गया था ट्रेनिंग करने. तो फिर यहाँ क्या अब हम 3 साल वीवर ऐसे हैं जो लिनन का भी काम करते हैं. और कॉटन भी हमने फिर कॉटन भी धीरे धीरे हमने कॉटन भी शुरू किया. तो कॉटन में थोड़ा आसानी हो रही है, लिनन में और ज़्यादा परेशानी होती है. तो फिर मतलब परेशानी तो होती है पर उसमें स्ट्रगल करके फिर हो जाता है कि सटल अभी धीरे धीरे मतलब हो गया है. हम इतने वो हो गए हैं कि हम कर सकते हैं कॉटन में. कोई भी नया चीज़ अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं. मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब हार नहीं माननी होती. उसके साथ उसको धीरे धीरे सहला के जैसे भी मतलब करके उसको हो जाता है. और कोई सवाल? लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे. अभी एक और सवाल आया है. वो पूछ रही थी कि आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल और मेंटेन करते हैं,
क्योंकि अगर हम पीस बेसिस पे ले रहे हैं, ये लोग पीस बेसिस पे लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से तौर पे, तो हम लोग यहाँ केजीयू में कैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं? क्वालिटी तो हम क्वालिटी चेकिंग करते हैं। एक तो हम जैसे जब हमारा कपड़ा बन रहा होता है तो उसमें भी हम बीज हम चेक करते रहते हैं। हम उनके पिकिंग जो पिकिंग ग्लास होता है उससे हम उनके पिक की काउंट करते हैं। उसके बाद जैसे कपड़ा बन के तैयार होता है तो फिर जैसे क्लिपिंग में जाता है तो उसको फिर हम वहाँ चेक करते हैं। वो पहले क्लिपर चेक करते हैं, क्लिपर से चेक करने के बाद फिर हम खुद चेक करते हैं एक बार हर पीस को अपने हाथ से चेक करते हैं हम। तो उसमें कहीं कुछ डिफॉल्ट, कहीं कुछ वो होता है तो फिर इसको जहाँ तक होता है हम उसी समय सुधारने की कोशिश करते हैं। सुधारते ही हैं हम ज़्यादा। जो फिर ज़्यादा डिफेक्ट होता है तो हम फिर उसमें हम पेनल्टी भी कुछ करते हैं। जो हमको अगर ऐसा पीस होगा तो फिर इसका रेट मिल जाएगा थोड़ा, तो थोड़ा वो करके फिर तब हम क्वालिटी भी कंट्रोल। Anurag, would you like to take over and wind up along with Jeena ji? Sorry, my connection has been giving me a lot of problems. I've been sort of getting locked off. So yes, just to add to what Jeena ji said about quality, like he mentioned, we do checking. So it's actually a double checking process whereby after the product is ready, it's checked twice. And if it goes to the shops, if it goes to our shops, then at the shops also there is an additional level of checking which happens before it's actually put on the shelves. We get immediate feedback from our customers, which happens very, very rarely. It does happen, obviously, but it happens very, very rarely that a customer points out a flaw in one of our products because it's been checked at least twice, sometimes up to 3 times. So yeah, I'm just looking if there are any other questions which have been left unanswered. Yes, Lester, I understand your point about Hindi. We did try to make it as simple as possible, and we did try to translate. But like Anamika mentioned, Jeena ji was going in a flow, and we didn't want to sort of disrupt that flow also. But yes, point taken that I wish it was more bilingual. Any other questions? Okay. So I'll request Mohit to wrap up. But before that, I just wanted to say a big thank you to all of you for. I know it's pretty late in the evening. A big thank you to all of you for participating in this and for that very enthusiastic set of questions and comments. It's always very heartening to hear from people, and we put up our website and our email address. So please, at any point in time, do drop in a line. We are reasonably prompt with answering emails, and there might be a slight delay if there's a big volume, but we will answer undoubtedly. And we've also put our Facebook and Instagram pages, so please do check us out. And like we mentioned earlier also, if any one of you is visiting the area, we would love to show you our work, our weaving center, our knitting groups, our agri unit. We would love to show all the work we are doing. And lastly, I just wanted to say a big thank you to
Anamika and to Jeena ji for this session, especially to Jeena ji for sharing his wonderful journey with us. So now I hand it back to Mohit. What a lovely session, very different from the kind of webinars that I've been doing, and it was a real eye-opener. And it was a jaw-dropping presentation because I didn't know anything about it. And now I'm more interested to go to your hearing centers and then see how things are done. And I think it's very important to educate people in Delhi, like how Sudhanya had pointed out, that a lot of these tourism or tourists would go to these places, stay in Peshawar, stay in places, but they've never had the chance to go and look at it. If I ask my children around, they won't know how these weaves are done and what it takes to go into it, and how they all think it comes from the factory. Yeah, but factory, but what? There are still people working behind the scenes, and the kind of labor that they put in, and the coordination, the intensity that's been displayed here today was absolutely amazing. So I did put 2 polls. In the first poll, which was to do with merino, people said sheep, largely, and for pashmina, the poll says 57% say goat. So what is correct? For merino, it's sheep, right? Am I saying the right thing, Anurag? Jeena ji should answer that actually. Jeena ji. So Jeena ji, yes, for merino wool comes from a sheep which is known as merino sheep, correct? And what was the second question? Pashmina. That's it. So 57% say goat, and 42% say sheep. Okay, so yeah, so it's now become 50-50. Wow. Yes, now it's 50-50. Should we leave it तो on? ठीक है, थोड़ा आधा उनसे ले लेंगे, आधा इनसे ले लेंगे, कोई बात नहीं. Pashmina is actually from a goat. It's called the Kashmir goat. So Yes. abroad, it's actually known as Kashmir, Kashmere. So it comes from that goat. It's synonymous with that name. Wonderful, wonderful. So that's fantastic. So friends who put sheep there, you got it wrong. Yeah. So it comes from goat. It doesn't come from sheep. So that was fantastic. See, all these things are all these webinars are knowledge driven. I posted a link here for you to come and join our other webinars. And every 2 weeks, Kilmora will be coming back online to educate you more about their work, the kind of work that they're doing with people there, and the people actually is people's place, is people's project. So Kilmora is run by Jeena ji and his accomplices and his team, and all such people in the hills. So we need to appreciate the kind of challenges they have, the kind of things that they're producing, the kind of purity and the sincerity which they are displaying, and we are the beneficiaries. So all we need to do is just acknowledge it and say thank you Jeena ji, thank you Kilmora, thank you Anurag, and thank you Anamika for bringing this to us. So with that, I would like to wind up and say thank you, good night, Shabba Khair, have a great time, wake up in the morning, happy smiling Sunday morning, and tomorrow morning at 8 o'clock I have a community program, a webinar, so you can join that by clicking the link, and see you in the morning. Bye-bye. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.